So hello my dear students. Yes, today we are going to start with a new chapter that is called money, right? From the money in banking, today we are going to learn and complete the entire chapter in this only video only, that is called money. So the question arises, my dear students, what is money? But before learning this chapter, I just want to inform you that if you learn this entire chapter from my video only, then then there is no requirement left with you that you have to go with other books also, right? So just read, just learn, just see this video completely, so that there is no need to go anywhere and to see from anywhere. Basically, today we are going to start with this chapter, and the chapter name is money. So here the first topic arises, that is called money. So what is money? Money क्या होता है? हाँ? So I just give you the definition, which is very important, and if you learn that definition, then there is no need to learn what? There is no need to learn functions of money. Why? Because this definition includes functions of money also. So what is that definition? अब आपको curiosity है ना जानने की कि सर वो definition क्या है? So I will provide you one definition that is for your money. So what is money? Money is anything which is generally accepted as medium of exchange, measure of value, store of value, and have standard deferred payment. What? Money is anything which is generally accepted as common medium of exchange, measure of value, store of value, and have a standard deferred payment. देखो अब इस डेफिनेशन को लर्न कर लो अच्छे से. अगर अभी संग में लर्न करते जाओगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा. क्या है डेफिनेशन? तो देखो डेफिनेशन, मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as medium of exchange, measure of value, store of value, and for the standard deferred payment. This is complete and full-fledged definition, my dear students, and this definition is called money. What is money? Money is anything which is generally accepted as common medium of exchange, measure of value, store of value, and stand for the standard deferred payment, right? Now the question arises कि भाई देखो क्या होता है क्या मनी? मनी मतलब एक ऐसी कोई भी चीज जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं. किस चीज के लिए? किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए. जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी चीज को आदान प्रदान करने के लिए. मैंने पैसा दिया, उसने मुझे सामान दे दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहलाया. मेजर ऑफ वैल्यू, किसी थिंग कॉमोडिटी को मेजर करने के लिए. लाइक दिस मार्कर कितने रुपए का है? 20 रुपीज का. तो दैट इज कॉल्ड, हमने क्या किया? इसको मेजर किया. क्या किया हमने? मेजर. तो मनी ने क्या किया? इसको मेजर करने में हेल्प किया. तो मेजर ऑफ वैल्यू, राइट. स्टोर ऑफ वैल्यू, मैं अपना पैसा आज सारा यूज नहीं करूंगा, कल के लिए भी उठा के रख देता हूं. दैट इज कॉल्ड, मैं उसको स्टोर भी कर सकता हूं फॉर फ्यूचर यूज, है ना. तो स्टोर ऑफ वैल्यू रख दिया. एंड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि जनरली सारे बिजनेसेस कैसे चलते हैं? उधारी पर चलते हैं. मैक्सिमम बिजनेस उधारी पर चलते हैं. उस टाइम पर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब है फ्यूचर पेमेंट्स करना. तो मनी आपको फ्यूचर पेमेंट्स करने में भी हेल्प करती है. दैट्स व्हाई वी से दैट स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट. आई होप इट इज क्लियर. सो अगर सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ मनी, तो व्हाट यू गोइंग टू राइट? द फर्स्ट फंक्शंस,  of money.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 1
फर्स्ट फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड फंक्शन क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड फंक्शन क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। फोर्थ फंक्शन क्या है? स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। लो, हो गया खत्म। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड हैव अ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। मनी, राइट। नाउ फंक्शंस क्या है? अभी तो डेफिनेशन में याद करें, वही तो फंक्शंस हैं। क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। इन चारों के मतलब भी मैंने आपको बता दिए। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ ऑल दोज फंक्शंस आल्सो, 4 functions. So this is the complete part of money and its function. Now let's move towards a new topic that is called money supply. मैंने क्या बोला? I already announced you this that my video is sufficient for this chapter, so there is no need to go somewhere else to go and see different type of thing to prepare notes. Just prepare the notes with me, along with me also. Whatever I am writing, you also just jotting out the words in your notebooks so that you can prepare your notes also. There is no need to prepare your notes again and again to learn something. तो इधर से करना है, वो भी करना है, ये भी रह गया, वो भी रह गया, सब करा दूंगा, पूरा इकोनॉमिक्स रटवा दूंगा। कुछ नहीं करना कहीं और से जाके, बस सारी वीडियोस देखते रहो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो, सो दैट मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, राइट। सो अगर आप सिर्फ मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, कंप्लीट मैं सारी वीडियोस कंप्लीट कर दूंगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन मिलता है, राइट, तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियो से मिलने वाले हैं, क्योंकि इट जस्ट कि हमारे पास लिमिटेड टॉपिक्स हैं, लिमिटेड सिलेबस है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है नहीं। इकोनॉमिक्स वैसे तो ईजी होती है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह पर आपको देखने की जरूरत है, सिर्फ इतना पढ़ते जाओ, बहुत है। चलो आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा मनी सप्लाई। तो स्टार बनाकर यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ नया टॉपिक, मनी सप्लाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में कितनी मनी है, कितना पैसा हम लोगों के पास में है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे मनी सप्लाई। क्या बोलेंगे बेटा? मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या हुआ? The total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. चलो इसको भी मैं लिख के दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। The total volume of money held by public at a particular point of time। इतना ही इजी है इकोनॉमिक्स, इतना इजी, संग संग याद करते जाओ, बहुत इजी हो जाएगा, है ना। बस अब मनी सप्लाई भी खत्म हो गया। क्या है मनी सप्लाई? द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। खत्म हो गया। लेकिन मैं ऑलरेडी इतनी छोटी छोटी डेफिनेशन दे रहा हूँ ना, इनको चेंज नहीं कर सकते आप। इसको भी सोचो कि मैं फ्रेम कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। छोटी छोटी डेफिनेशन से याद कर लो यार, कितना टाइम लगता है। और फिर मेरे संग संग कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। नेशनल इनकम की वीडियोस देखनी है तो पुरानी वाले चैप्टर्स, पुरानी वाली वीडियोस देख लीजिएगा, उस समझ में आ जाएगा। वैसे मैं एक रिवीजन वीडियो और भी बनाऊंगा, उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग मनी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो मनी सप्लाई सिर्फ इतना सा है, राइट। लेकिन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई या कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 4 कॉम्पोनेंट्स हैं, दैट इज M1, M2, M3, M4। कितने मेजर्स हैं? 4। लेकिन खास बात,
हमारे सीबीएसई की जो सबसे खास बात है, हाँ, वो बच्चों को बर्डन डालना नहीं चाहता है ना। तो सीबीएसई हमेशा बच्चों के बर्डन को रिड्यूस करने के बारे में सोचते हैं। तो इस बार उन्होंने सोच लिया है कि भाई M2, M3 और M4 काट दो। तो सिलेबस में M2, M3, M4 नहीं आने वाला है, ओनली आपको M1 करना है। क्या करना है? M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई आपको पढ़ना है। इससे कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है C प्लस DD प्लस OD। क्या? C प्लस DD प्लस OD। अब आप बोलोगे सर क्या है ये C प्लस DD प्लस OD? अरे ये भी बहुत सिंपल है, देखो एक बार में और समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है, अब तक क्या लर्न किया है। तो देखो भाई, C मतलब C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। एंड OD क्या है? अदर डिपॉजिट्स विद RBI। राइट? सो देखिए, मनी सप्लाई क्या था? द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। राइट? फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो कंपोनेंट्स हमारे पास 4 हैं। राइट? दैट इज M1, M2, M3, M4। ऐसे 4 मेजर्स हैं मनी सप्लाई के। उन 4 मेजर्स में से ओनली M1 हमारे सिलेबस में आ रहा है। कौन सा वाला आ रहा है? M1 वाला। राइट? तो M1 में हमने आपको फॉर्मूला बताया, वो क्या है? C प्लस DD प्लस OD। अब C क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक। एंड OD क्या है? अदर डिपॉजिट्स विद RBI। संग में इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर मेरी शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो इन सब के बारे में, जो आप सबको इसी चीज एक्सप्लेन करेगी कि DD स्पेसिफिकली क्या है, OD स्पेसिफिकली क्या है और C स्पेसिफिकली क्या है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि अभी और समझने की जरूरत है, तो उसको डिटेल में शॉर्ट पर्टिकुलर टाइप में, रील टाइप में मैंने आपको समझाया है। तो आप वहां जाकर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। दैट इज फॉर अभिनव वशिष्ठ। राइट? नेम इज अभिनव वशिष्ठ। Okay, now this is M1, M2, M3, M4. Here it is also completed. समझ में आया इस चीज को? वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो M1 ये C है और ये जो OD है ना, इसे बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। और इसे बोलते हैं बैंक मनी। ये कोई बता नहीं रहा होगा आपको, और ना आपने कभी देखा है, किसी ने बताया ही नहीं आपको जब आप जितने ही पढ़कर आए हो, जहां पे पढ़ के आए हो। दैट C प्लस DD हाई पावर्ड मनी हो गया, और DD क्या है? बैंक मनी है। इसको भी डिटेल में पढ़ने के लिए आपको शॉर्ट्स देखने पड़ेंगे। कहां पर जाकर? इंस्टाग्राम पे जाकर। राइट? और यूट्यूब पे शॉर्ट्स में मैं डाल रहा हूं, उसको भी आप देख सकते हो। चलिए, तो ये समझ में आया इतना क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट रह गया है, इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट हमारा ये चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मनी। फिएट मनी, fiduciary money, full bodied money, and credit money. So here specifically we have to focus on these 4, that is types of money. Here first is fiat money, second is fiduciary money,
थर्ड इज फुल बॉडीड मनी एंड फोर्थ इज क्रेडिट मनी। बहुत सिंपल से हैं। अगर सबसे पहले जाने कि ये फिएट मनी क्या होता है, तो फिएट मनी के बेटा लीगल टेंडर मनी, जैसे हम क्या बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, जो जनरली इश्यू होती है, जो जनरली चलन में है, हमारे मार्केट में सर्कुलेट करती है, जहां पर आरबीआई का नाम लिखा हुआ है, जहां पर गवर्नर के सिग्नेचर है, फादर ऑफ नेशन का प्रोमिसरी नोट है, वही जो नोट हम लोग चला रहे हैं वो सब क्या है, लीगल टेंडर मनी है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिएट मनी बोलते हैं। Second is fiduciary money. What is that fiduciary money? Fiduciary money say that it is a trust between the payer and the payee. The trust between the buyer and the seller. It is called fiduciary money. And what is that fiduciary money? Like check. चेक आपने देखा है ना सब लोगों ने, तो चेक जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है फिड्यूशरी मनी का। फिर आता है बेटा थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। एंड व्हाट इज फुल बॉडीड मनी? हियर व्हेन द मेटालिक वैल्यू इज इक्वल टू दी मनी वैल्यू। जब मेटालिक वैल्यू मतलब कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो उसको फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचो आपके पास एक कॉइन है, वो कॉइन गोल्ड का बना हुआ है, उस गोल्ड के कॉइन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 100 रुपीज लिखा हुआ है। उस कॉइन को बनाने में जो गोल्ड यूज हुआ है वो भी 100 रुपीज का हुआ है। इसका मतलब उस कॉइन को बनाने में जो कॉस्ट आया, उसमें जो मेटल यूज किया है वो किसके बराबर हो गया, उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी थी उसके बराबर। इसी को बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। मींस इट इज द मनी विच इन विच कॉमोडिटी वैल्यू और मेटल वैल्यू इज इक्वल टू दी मनी वैल्यू, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसके बराबर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। एंड द नेक्स्ट फोर्थ लास्ट इज क्रेडिट मनी, जो अभी कह सकते हैं कि हमारे सर्कुलेशन में जो है, इन विच मेटालिक वैल्यू इज लेस देन दी मनी वैल्यू। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है मनी 1 रुपी, 1 रुपी कॉइन लिखा हुआ है, और उसका जो मेटल है, उसको जो बनाने में यूज हो रहा है मेटल, वो हो रहा है लगभग 0.25 रुपी पैसे का। तो 0.25 पैसा क्या है, उसको उसकी मेटल वैल्यू है, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो मनी वैल्यू है जो 1 रुपी लिखा है। इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी क्या होता है, क्लियर हो गया। फिएट मनी क्या होता है, फिड्यूशरी मनी क्या होता है, फुल बॉडीड मनी क्या होता है, क्लियर है। मनी सप्लाई क्या होता है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, मनी की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शंस ऑफ मनी की डेफिनेशन, फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, ये सारा हमने इस चैप्टर में कवर अप किया और ये चैप्टर खत्म हो गया, राइट। फटाफट से एक छोटा सा क्विक रिकैप्चुलेशन ले लें। Okay, so quick recapitulation for money. Here we have the definition called money. Money is anything which is generally accepted as medium of exchange, measure of value, store of value, and for the standard deferred payment. What are the functions of money? Medium of exchange, measure of value, store of value, and standard deferred payment. These are the functions. Let's go towards money supply. What is money supply? Money supply means the total volume of money held by public at a particular point of time in an economy is called money supply. क्या? The volume of money, the total volume of money held by public at a particular point of time in an economy is known as money supply. What are the measures of money supply? Here we have M1, M2, M3, M4, 4 measures, and out of that we have to learn only first measure, that is called M1. And what is that? M1 equals to C plus DD plus OD. What is C? C means currency held by public, जो पैसा हमारे पास में है, हमारे सर्कुलेशन में है, सबके पास, सारे पीपल्स के पास में इंडिया के, उन सबको क्या बोलते हैं? C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। डीडी क्या है? हमारा पैसा जो हमने कमर्शियल बैंक को जमा कराया है, हमारा पैसा जो हमने कमर्शियल बैंक को जमा कराया है वो डीडी है। और ओडी मींस आरबीआई के पास जो पैसा डिपॉजिट किया गया है, एंड अदर फॉर्म्स लाइक वी से दैट कि हमारा जो सीआरआर है वो हमने डेवलप किया है। तो ये दीज टाइप ऑफ थिंग्स हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड अदर डिपॉजिट्स, पार्ट ऑफ अदर डिपॉजिट। गवर्नमेंट सी जो होती है वो अपना डिपॉजिट करती है, वो सब कुछ क्या है, अदर डिपॉजिट का पार्ट है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड here the measures of money supply. And the last topic is for types of money, and the types of money we have fiat money, fiduciary money, credit money, and full bodied money. Fiat money क्या है? When that is legal tender money which is generally accepted by all, called legal tender money. Second is fiduciary money, called trust between the buyer and seller, payer and a payee, called check. थर्ड इज फुल बॉडीड मनी, द मेटालिक वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू, जिसमें जो मेटल बनाने में यूज हुआ वो बराबर है किसके, उस मनी वैल्यू के। अगर 1 रुपए का सिक्का है और उसको बनाने में 1 रुपए ही लगा है तो इसका मतलब वो फुल बॉडीड मनी है, राइट। और फिर आता है लास्ट हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब है जब मेटालिक वैल्यू कम हो जाती है और मनी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमारा 10 रुपये की अगर कॉइन की बात करें तो 10 रुपये कॉइन के ऊपर लिखा है 10 रुपीज़, लेकिन उसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो कम का है,
वो लेस देन 10 रुपीज़ है, इसे बोलते हैं क्रेडिट मनी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर आगे इतनी ही जल्दी सारे चैप्टर्स को खत्म करना है, बहुत जल्दी से और गारंटी के साथ करना है, तो फिर बने रहिए इस चैनल पर, पूरी वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने भी वीडियोस में आगे डालते जाऊंगा सबको देखिए और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा शेयर करो सो दैट मोटिवेशन लेवल अप हो और आई जस्ट प्रिपेयर लॉट ऑफ वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।